अनसूयोत्री संभूतो दत्तात्रेयो दिगंबरः स्मर्तृगामी स्वभक्तानां उद्धरतात भवसंकटात. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम नमः चंडिकाय. A very very warm welcome to all the gorgeous Arula super moms and devoted Arula super dads watching me at this point of time. I welcome you all to the question and answer session of this week. I know that everyone, every mom, Arula super mom is working hard, and more than hard, I will say she is doing hard work, but with lot of enthusiasm, with lot of love for her child. I always say we are taught most of the time एक गलत सिखाया गया है हमें. वर्क हार्ड, देर इज़ नो रिजल्ट अदर देन वर्किंग हार्ड. जस्ट स्लॉग, वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो. लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जो एडवाइस दिया जाता है, हमारे बड़ों ने भी दिया है एंड ऑल, ये आधा अधूरा एडवाइस दिया जाता है. दे आर गिविंग अस हाफ ट्रू एडवाइस. आई ऑलवेज से कि वर्क हार्ड, और जब ये वर्क हार्ड हम करते हैं, हम बहुत मेहनत लेते हैं, तो हम ऐसा खुद को बोलने जाते हैं, वी स्टार्ट टेलिंग इट्स दिस टू आवर सेल्व्स दैट ओ माई गॉड, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ बहुत ऐसी, जिसे मराठी में ढोर मेहनत कहते हैं, मतलब गधा जितनी मजदूरी करता है वैसे गधा मजदूरी जैसा मुझे करना पड़ रहा है. उसमें से क्या होता है कि ये हार्डवर्क में से निकल आता है आउटकम, जिसे मैं कहती हूँ वो डिप्रेशन, सपरेशन, काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट. क्योंकि बहुत हार्डवर्क करने के बाद जब हम बहुत काम करने जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है हमें बहुत बड़ा कुछ ऐसा एकदम दिखे, मिले. वैसा नहीं होता. फिर कभी कभी वो मिसमैच हो जाता है. एक्सपेक्टेशंस and the result, there is a mismatch, and there we get demotivated. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, just tell yourself, work smart, little hard, but with love. This is the equation in Arula. अरुला की कोई भी माँ बच्चे को 4-4 घंटा लेकर बैठी है दिन भर में, एक के पीछे एक लगी है, ऐसा सीन मुझे नहीं देखना है. और हम देखते भी नहीं हैं. मदर चाइल्ड सेशंस शॉर्ट्स होते हैं, एकदम शॉर्ट होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार भरा होता है, लॉट ऑफ कंपैशन. क्योंकि जब चीज़ें छोटी सी करनी होती है ना, तो हमारा जो देने का ये रहता है, टू फुल फ्लेजली उसे करने का जो एक जुनून रहता है, जो एक खुशी रहती है, वो बहुत ज़्यादा रहती है. दैट हैप्पीनेस इज़ ग्रेट व्हेन थिंग्स आर टू बी डन इन लिटिल स्मॉल पीसेस, एंड दैट अरुला इज टीचिंग. So I always say the equation is work smart, little hard, but with lot of love. मज़े करो बच्चे के साथ. Enjoy with your child. Involve him in your every aspect of your life, wherever it is possible. And then at the end of the day, just sit with a cup of tea in hand or cup of coffee in hand and saying, oh, I did a good job today. My child also did a good job. Today's day was fruitful, and then have a sip of coffee. Okay? So this is something like that. I want to see this picture in every Arula super mom's house, every Arula super dad's life. And happy family leads to great productivity. This is the equation by default. No one can change. Sort out your problems. Yesterday only I was discussing with one of the cities, Somuki, and she was telling me, बच्चा रहा बाजू में, child is kept aside, husband wife only
keeps on fighting in the session, on the group, and all these things. जहाँ पर I know that having a child who is neurodivergent, who is on autism spectrum, it is not easy to be happy all the time. But happiness is something, it is learned. It can be learned. You have to make yourself learn how to be happy. That means there are one simple thing, once you start doing it, I think you will learn how to be happy all the time. This is my secret mantra to all, which I implemented on all. First of all, don't show expectations from anyone, not from your husband, not from your family members, and most importantly, definitely not from your child. Don't have any expectations. इससे क्या होगा? These expectations generally what they do? When they are not achieved, when the expected results are not seen, they bring downfalls. Downfall हो जाता है. Physically भी, mentally भी, socially, spiritually, everywhere, emotionally, downfall. Once you start, अरे जो होगा वो होगा यार, let me enjoy, let me work, जितना मिलना है उतना मिलेगा. That my Almighty is seeing my efforts. He will give justice to me. Why this positivity is not getting created, is not emerging? You have to emerge. And I am telling you, happiness is a learned thing. People say happiness is innate, it is eternal, that has to be. I don't say that. I think, and I am very pretty sure because I have implemented it on thousands of mothers, it is learned. It is quite learned. You can learn to be happy. Only thing over there, what you need to do is stop expecting. And secondly, positivity. Reading a dozen of books of positive thinking, how to overcome negativity will never work. You have to be busy. ये जब खाली होता है ना, शैतान का घर बन जाता है. You have to be busy. And Arula has been designed in such a way that it keeps the family busy in the child throughout the day in one or the other way. Family members, one or the other way. Secondly, it builds up the team. Team बनाओ बच्चे के लिए. Don't be always, I am the only one, I am the sufferer, मेरे को ही करना है. अरे क्यों? Keep your ego aside ना, little bit. Keep your ego aside. Take help of people. अरे अपने घर में जो मेड आती है ना, our maid, झाड़ू पोछा करती है, कुक ये करती है, साफ सफाई करती है, उसको भी give her importance in your life. That importance will be there na, if she doesn't come one day, अरे my work and I have to keep happy my maid and everything. So even give importance to her for your child's development. Involve her. Involve everybody around you who is associated with your child. And that positivity is very important. School is child is having problems in the school. He's not having very good social skill. अरे एक तो बच्चा होगा ना, one friend in his school. Can't you be passionate about keeping that, flourishing that relationship between both of them, means your child and that other child? Meet the mom, meet the family, call them at home, have some parties, have some get-togethers, take these 3 children out somewhere, take an initiative. I have done everything for Devahuti. Being in my so busy schedule, last week, her college friends, she has only 3 friends in college, very good group, 4 of them together. I took them to one of our places at Belapur, my second home. I took them there and they enjoyed. I took them for an overnight stay, fed them, cooked very good food for them, took them out for disco and all. They enjoyed. You have to do that. I will not do, me and my child, me and my family. I don't want anybody. This is about friends. It holds true for relatives also. There are relatives who are constantly judging you, constantly taunting you. फेंक दो उनको बाजू में. Don't at all entertain them. I am in support in that. The relatives which are eating your head or disturbing your mental peace, keep them aside and convince your husband about it. Tell him, my target is to work on child. If I am happy, my child will progress a lot. If I am not happy,
my child will not. And these people are disturbing me. Okay? So that way. But there are some people, friends, some relatives, some distant people who are interested, who are willing your child to grow. They are willing that he should progress, he should have great things in life, he should learn, he should, achieve things. So being little, keeping our ego aside, take the help of them. Na? Make them realize that, yes, my child is having this issue. छुपाने से कुछ नहीं होता है. हाइडिंग ऑल द टाइम. आई डोंट वांट टू टेल हिम. अरे क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे विल क्रिएट अ सेपरेट सोसाइटी फॉर योर चाइल्ड. अभी और छुपा दो बच्चे को किसी रेसिडेंशियल इसमें छुपा दो बच्चे को. सम रेसिडेंशियल प्लेस समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. ही विल गेट ऑल 5-star फैसिलिटीज. कीप हिम देयर. डू यू वांट दैट? और यू वांट योर चाइल्ड टू merge with the society? अगर ये है, then stop hiding the things. I don't want to reveal. I am not saying you should reveal it for the advertisement purpose. I am not saying you should advertise. But there are good people in your life. Be open to them. Talk to them. Somebody new comes in Devahuti's life. Somebody new is associated me. I make it sure that if Devahuti is getting in connection with that fellow, I make that fellow realize, you see, my child is on spectrum. She's on spectrum. She's a very good child, this thing and all. But sometimes you have to just little take care of her, ups and downs and all. She'll be all right all the time. क्या good days, bad days आते नहीं है? आते हैं. Still Devahoti is facing some 2-3 months के बाद ये dip आ जाता है. Bad day आ जाते हैं. Bad days का एक phase आ जाता है. अरे आने दो ना. डरने का क्या उससे? Why to get scared and why to hide? I don't want to tell people and justifying and only. Don't do that. You will never achieve that height in your life, which Mayuri ma'am has achieved. So what my thing is that you be open, be clear and be positive and things will work out. Okay? Chalo, I have talked today in the beginning only. So now without further delay, we'll start with the questions. Yes, Vanchika, you can play it. Hello, this is Vandana Sharma from Satna, Madhya Pradesh. Son name is Purab Sharma, age 7 years old. Question for today Q&A session is how to boost up confidence. Although Purab has very actively participated in summer camp, but still in publicly, how to boost up confidence of his child. Please guide us, ma'am. Boosting confidence. Vandana is asking how to boost confidence in my child. He is doing very this thingly. He is doing. He participated in summer camp. He did a lot of good things. But how to boost confidence? Confidence is something like you have to go on praising the child all the time. Okay. Confidence is not something only if you verbally praise the child. ये अच्छा किया, ऐसा करो, वैसा करो, very good. Yeah, that is okay, that is required. But nowadays I see some people, so-called autism coaches, so-called therapists and all. They show their, therapy session ka clips and all on YouTube and all. I see them. Everything. Give me that red pen. The child is giving red pen. Oh, very good. Good job. Very good. क्या है ये? रेड पेन उठाने को बोला, रेड पेन उठा के बच्चे ने हाथ में दिया, उसमें वेरी गुड जॉब करने की क्या ज़रूरत है? यू कैन प्रेज करने का भी एक तरीका होता है. नॉट फॉर एवरीथिंग. क्यूमुलेटिवली इफ द चाइल्ड इज डूइंग 2-3 things together, if he is doing the things, then very soothing voice and very calmly you have to keep on, you can keep on telling him, great, you are doing it well, I am happy with you. You have done this job. It is amazing. Okay? Come on. ये ऐसे टोन निकाल कर good job, clap for me. These are not our culture. This is not our culture. This is not the way we raise children in India. Indian cultural heritage is the strongest one in the world. This is not our, we don't do that. Okay? Good job. And we don't do that. Our children don't need that job validation for everything. Our children just don't need it. So be calm, be soothing. This is one thing, Vandana. And second thing,
giving opportunities to the child, that is something that you are showing confidence in your child. For an example, mama is going out, that vegetable vendor has come, मम्मा वो सब्ज़ी लेने के लिए नीचे जा रही है, 2 मिनट में आ जाएगी, ज़रा घर संभालना, ये बोलकर आप जाते हो. यू आर गोइंग आउट, यू आर गोइंग डाउन, यू आर परचेसिंग वेजिटेबल्स, यू आर कमिंग इन 5 minutes and the child has taken care of the home. That you have given the opportunity to your child and he has proven himself, he did the job. That is increasing his confidence and not your verbal praise all the time, because you are giving opportunities to your child. Then you are saying that Purab did good, excellent, happy, mama is happy. Okay, a simple kiss on cheek and some cuddling on back will help. That's all. Okay, so don't make your child habituated to that verbal praise. What we call in a clinical language, positive reinforcements. No need. Okay. So Vandana, you don't have to worry. Children are going to learn. Purab is going to learn. Just be prompt in giving good opportunities to your child. That's it. And that will work. छोटी छोटी चीज़ों में घर पे opportunity दो. How to do? I always say that involve your child in your daily chores. छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, कभी कभी ये फिज़िकल चीज़ें रहती है, कभी कभी ये कम्युनिकेशन बेस्ड होती है और समथिंग लाइक दैट. मतलब किसी को जाके कुछ बोलना है, अरे ये शक्कर का ये है, ये थोड़ा मैंने बनाया है, हलवा बनाया है, वो ज़रा बाजू वाली आंटी को देकर आओ ना हमारी, हाँ उनको बताना मम्मी ने भेजा है करके. छोटी छोटी चीज़ें उसको इन्वॉल्व करो. ऑल दीज थिंग्स you will start noticing that his confidence is building. He is capable of building up his own confidence. No need to worry. But just give him opportunities. Okay? Let us move to the next question. हॅलो, मी वैभवी उसला माईक नाही दिला. पाठपालोची आई. तो आता 10 वर्षाचा आहे. त्याचं सगळ्या ॲक्टिव्हिटी चांगल्या करतो तो. आतापर्यंत झाले ते 10 ॲक्टिव्हिटी झाल्या आहेत. तर त्याच्यामध्ये चांगला परफॉर्म करतो. पण तो असं नेहमीच याच्या आधी पण जिथे थेरपी सेंटरला तो परफॉर्म करतो. सगळ्या ॲक्टिव्हिटी समोरच्याने सांगितलं तो त्याप्रमाणे प्रॉपर फॉलो करतो. पण त्याचं इन्व्हॉल्वमेंट असं दिसत, म्हणजे इन्व्हॉल्व असतो तो, पण बाकीच्या गोष्टींमध्ये फक्त ॲक्टिव्हिटी ॲज अ ॲक्टिव्हिटी तो करतो. पण बाकीच्या आपण डेली लाईफच्या रुटीनमध्ये खूप कमी इन्व्हॉल्व होतो. फक्त त्याच्या इंटरेस्टच्या गोष्टीमध्ये तो इन्व्हॉल्व होतो. तर ते कसं होईल ते याच्याबद्दल गाईडन्स द्या. शी हैज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. पार्थ की मम्मा हैज़ आस्क्ड कि बच्चा एक्टिविटी करता है, एज अ परफॉर्मेंस ही गिव्स अ गुड परफॉर्मेंस वॉट एवर ऑफ हिज लाइकिंग, लेकिन उसको मैं जनरलाइज्ड घर के चीज़ों में मैं इन्वॉल्व करने जाती हूँ उसको, तो वो नहीं करता है. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस? क्या लगता है आपको, क्या रीज़न है कि बच्चा एक्टिविटी करने बिठाओ तो बैठ जाएगा तुरंत और कर लेगा, लेकिन देन उसके बाद थोड़ा जब मैं कुछ अलग करने जाऊँ, मैं घर का काम उसे कुछ मैं इन्वॉल्व करने जाऊँ वगैरह, तो वो नहीं करता है. ये उसको जो थोड़ा सा ये दे दे हम लोग, प्रेशराइज कर दे. मतलब आधा जवाब तो मैंने ही दे दिया, लेकिन एनीबडी कैन सजेस्ट ये क्यों होता है ऐसा, एनी मदर, कि एक्टिविटीज़ में चाइल्ड इज़ शोइंग गुड परफॉर्मेंस बट व्हेन इट कम्स टू, या वेरी गुड, रीना हैज़ गिवन, अरे वाह, वेरी गुड, व्हाट एन आंसर. शी हैज़ सेड दैट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इज़ एब्सेंट. एब्सोल्युटली राइट आंसर. हम करते हैं, हम गधा मजूरी करवाते हैं बच्चे से. और बच्चा क्यों करता है? बच्चा क्यों करता है कि ही नोज़ दैट. थेरेपी सेशंस को लेकर आपने शुरुआत की है. यू हैव स्टार्टेड इन द व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, 2-year-old child, that a therapist makes him sit in the chair or somewhere and does the session half an hour, 1 hour long. She keeps on engaging him. बैठना ही पड़ेगा मुझे. ये एक इनबिल्ट कोपिंग मैकेनिज़्म बन जाता है बच्चे का. आई विल नॉट सेट कोपिंग, इट्स मोर लाइक एन कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म बन जाता है कि बैठना ही पड़ेगा मुझे, आई हैव नो चॉइस, मुझे वो छोड़ेंगे नहीं. ये थेरेपी, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कन्वेंशनल थेरेपीज़ का, दैट देर इज़ अ वेरी मच फोर्स ऑन एंगेजमेंट विद द चाइल्ड. वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है.
अब नाउ पार्थ की मम्मी, क्या करना है पार्थ की मम्मा तुमको, कि उसको जो एक्टिविटीज़ पसंद है अरुला की, ओके, मे इट बी वाटर एक्टिविटी, मे इट बी सम दिस एक्टिविटी, उसे जो पसंद है वॉट एवर ही लाइक्स, जस्ट स्टिक टू दोज एक्टिविटीज़ मोर. मतलब उसे वाटर की एक्टिविटी पसंद है, वो करवाओ. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, 2-3 बार वो करवाने के बाद एक थोड़ी सी नई एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करो. एंड आई एम टेलिंग यू, ये एक्टिविटी करवाते वक्त लॉट ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अरे पपिया दे दो, कडल करवा दो, ऐसा और बैठ के करवाने का ना पहला ये छोड़ दो कि मुझे एक्टिविटीज़ बैठ के करवानी. मैंने किया अरुला एक्टिविटीज़ कैन बी डन, इसलिए बच्चा मूविंग है घर पे, वो खुद कर रहा है. मैंने टेबल पे अरेंज कर दिया है मेरा सेटअप, भले किसी ओरिएंटेशन एक्टिविटी हो, एक्सेलेंस की हो, ब्रिलियंस की हो, मैंने टेबल पे अरेंज कर दिया और वो खेल रहा है. पार्थ पार्थ कम ना बेबी कम, और मम्मा इज़ नॉट एबल टू डू दिस, जरा आजा पानी डाल के दिखा मुझे, और मम्मा को नहीं आ रहा है. समथिंग, दिस इज कॉल्ड एज इमोशनल दिस इज कॉल्ड एज सर्टन प्रिटेंशंस दैट यू नीड टू डू, बिकॉज you are not a teacher. In Arula, I always say, Arula super moms are, I don't want you to act like a teacher. वो स्कूल में काम होता रहता है टीचर्स का, वो हमारा काम नहीं है टीचर बनना उसका. वी नीड टू प्ले अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर. मतलब चीज़ें करवानी नहीं है, बस हो गया. कैसे कहते हैं, प्यार किया नहीं यार मैंने, प्यार बस हो गया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग. आई डेंट लव एनीबडी, इट जस्ट हैपेंड. Something like that has to be done in your child's case. It just happened. That feel it should come. Bhale child is sitting for 20 seconds on his own. I am always asking you. On his own is sitting for 20 seconds is fine. Tomorrow he'll sit for 30 seconds. If I relieve him before his threshold is reached. What do you mean by threshold? Tolerance level. मेरे बच्चे का कैपेसिटी है 5 मिनट का बैठने का. आई एम जस्ट आस्किंग फॉर एनी एक्टिविटी. 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है 2 मिनट का है मेरे बच्चे का. माई चाइल्ड कैन सिट फॉर 2 मिनट्स एट अ स्ट्रेच फॉर वन एक्टिविटी. देन आई विल नॉट गो अप टू दोज 2 मिनट्स टू हिट. आई विल रिलीव हिम इन 1 मिनट. समझ में आ रहा है? उसका टॉलरेंस है, अभी भी वो कर सकता है एक्टिविटी, लेकिन आई एम रिलीविंग हिम इन 1 मिनट. दैट मीन्स वॉट? What does that mean? I am not touching his threshold, I am not crossing his threshold. और ये जब हम करते हैं कि उसकी मर्जी जब तक होती है वो एक्टिविटी, तब भी हम उसे रिलीव करते हैं. जा बेटा खेल ले, जा बेटा डन, आई विल कॉल यू लेटर, बाय बाय, चलो गो. So you want to watch TV? Okay, I'll put it for you. Okay, you want to do this? I'll do that for you. Are you hungry? Let us have something. Like that, before his threshold is reached, you are relieving him. Okay? इससे क्या होता है, द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू कॉल हिम, ओके, पार्थ की मम्मी सुनो ठीक से, और सब मॉम्स, ओके, ऑल द मॉम्स, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर कॉलिंग हिम, हिज अर्ज टू कम टू यू विल बी मोर. दैट उसका थ्रेशोल्ड ही रीच नहीं हुआ. मम्मा के साथ तो मैंने एंजॉय किया वो 1 मिनट, फिर वो 1 मिनट का 2 मिनट हो जाता है, 2 के 4 हो जाते हैं, 4 के 8 हो जाते हैं. ऐसा ये बढ़ता जाता है. बट यू आर नॉट क्रॉसिंग, यू आर नॉट टचिंग हिज थ्रेशोल्ड ऑफ. अभी मुझे नहीं करना है यार, ये नहीं होता है. दैट बच्चा नेवर फील्स ओनली, ही डजंट फील एट ऑल. एंड दैट इज कॉल्ड एज द अरुलाज. आई ऑलवेज कॉल इट एज द सीक्रेट सॉस that relieve the child before his threshold is reached, and you see that wonderful results are occurring. Okay, let us move to the next question. मॅम, मी समृद्धी राव, आराध्य रावची आई. आराध्य तर 5 वर्षांचा झाला आहे. तर त्याचं असं आहे ना की ॲक्टिव्हिटीज करताना पण त्याच्या मूडवर खूप गोष्टी आहेत. म्हणजे कधी कधी तो इतका मूडमध्ये असतो, मग तो सगळं छान करतो, आणि मोस्ट ऑफ द टाइम त्याचा मूड नसतोच. तरी पण मग मी त्याला डायवर्ट करते की थोडं त्याला गाणी आवडतात, म्युझिक आवडतं, मग थोडं काहीतरी त्याच्याशी खेळून मग मी त्याच्याकडनं ॲक्टिव्हिटीज करून घेते. आणि स्पेसिफिक ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या त्याला खूप आवडतात, मग त्या करायला काही नाही त्याचा प्रॉब्लेम, मग तो ते करतोच. फक्त नवीन काही इंट्रोड्यूस करायचं झालं तर ते इतका त्रास देतो त्यासाठी तो मला. आणि अजून एक होतं की तर त्याची शाळा सुरू होते, तर इतके दिवस कसं होतं की म्युझिक आवडतं म्हणून त्याला ते ABCचे फोनिक साऊंड्स वगैरे खूप आवडायचे ऐकायला. स्क्रीन टाईम तर त्याचा नाहीच आहे. आणि आत्ता सध्या रिसेंटली 4-5 दिवस झाले असं झालंय
की ABC इवन मी जरी म्हणायला लागले ABCD तरी पण तो इतका रडतो की म्हणजे त्याला असं वाटतं की काय ही म्हणते किंवा अभ्यासाचं सुरू केलंही नाही असं. आणि इतके दिवस शाळेमध्ये तो नॉर्मल स्कूललाच जातो, तर शाळेमध्ये तो छान ABC वगैरे जेव्हा फोनिक साऊंड म्हणायचे तेव्हा तो एन्जॉय करायचा, ॲटलिस्ट तेव्हा तरी तो बसायचा. तर आता मला ही काळजी वाटते की आता शाळा सुरू होईल आणि हा अचानक आता ABC सॉंग्सला किंवा नंबर्सला घाबरून रडायला लागलाय, तर आता मी काय करू? किंवा 8 दिवस माझ्या हातात आहेत अजून, तर त्याला आवड कशी निर्माण करू? त्याचं प्लीज मला सजेशन द्या. थँक्यू. Her question is child does activity, Aradhya's mom, on whenever he is in mood. Okay, and second thing, he likes that ABCD sound बनाने वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट है that is there. स्क्रीन टाइम उसका 0 है ऐसा उसने बताया. ये क्या कितने दिन हुए इसको इन्वॉल्व होके? हाँ, एनीबडी कैन आंसर मी. इफ शी इज़ अटेंडिंग आराध्याज मॉम, तो मुझे बताओ ज़रा बेटा कितने दिन हुए हैं तुम्हें ये होके अटैच होके. ओके, समृद्धि सेइंग फ्रॉम फेब मार्च अप्रैल मई. ओके, 3 months. सबसे पहली गोष्ट, मैं भी हिंदी में जवाब दूंगी समृद्धि. सबसे पहली बात तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स तुम लोग यूज़ करते हो ना, ABCD बजाने के लिए, 1 2 3 बजाने के लिए, नर्सरी राइम्स बजाने के लिए, ये पहले बंद कर दो. ओके, म्यूज़िक अच्छा लगता है मतलब ये सुना रहे हो, इसे म्यूज़िक कहते हैं? मेरे बच्चे को म्यूज़िक अच्छा लगता है क्या? वो कोको मेलन है ना, उसका वो म्यूज़िक वगैरह उसे बहुत अच्छा लगता है. वो 2 घंटा 4 घंटा सुनता रहता है. उसे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है. वो क्या करता है, नर्सरी राइम्स वो घंटों घंटों सुनता रहता है. उसे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है. वो 1 2 3 ये सब चीज़ें, वो राइमिंग वर्ड ABCD के सॉन्ग्स वो सुनता रहता है. इसको कहते हैं म्यूज़िक अच्छा लगना. याला म्हणतात का म्युझिक आवडणं? दिस इज़ नॉट कॉल्ड एज म्यूज़िक. दिस इज़ नॉट एब्सोल्युटली म्यूज़िक. तो ये स्टॉप करो पहले. ओके, ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, और जो लोग भी कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं बच्चों के लिए, विच आर नॉइज़ मेकर्स, आई कॉल दीज आर नॉइज़ मेकर्स, दीज आर नॉट द इंस्ट्रूमेंट्स. यूट्यूब पे माई वीडियो इज़ देयर एंड दिस थिंग everything, yes, and that is the thing. Samruddhi, you are right. Focus on musical enrichment. Your ACT will get in touch with you. Talk to your ACT and work on musical instruments. That is one thing, which are basic 4 musical instruments which I like, जिसका एक्सपोजर बच्चे को मिलना चाहिए, ऐसा मैं कहती हूँ. ये ओल्ड जो हमारे पेरेंट्स हैं शायद जवाब दे पाए. कोई नहीं जवाब दे पा रहा है. तबला, हारमोनियम, सितार एंड फ्लूट. हारमोनियम इज़ द ओरिजिनल साउंड, जिसे कहते हैं स्वर का ताल. यहाँ पे ताल का एक है यानी तबला, फिर उससे अलग वो हो जाए, जैसे ढोलक हो गया, ढोलकी हो गई, मृदंग हो गया, वो सब तबला के कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम ताल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं. कोई अगर म्यूज़िक पढ़ता है, सीखता है, तो वो समझ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सितार है, हारमोनियम है, तानपुरा है, फ्लूट है, ये सब स्वर रिलेटेड है, स्वरों को रिलेटेड है. ओके, यूट्यूब पे इसके 1 घंटे तक के पीसेस अवेलेबल है, वीडियोस मतलब दैट पीस ऑडियो पीसेस आर अवेलेबल. बच्चा जब सुबह उठता भी नहीं है ना, उसके उठने से पहले यू ऑल आर सपोज टू पुट दैट म्यूज़िक नियर बाय हिम, अ वेरी काम सूदिंग म्यूज़िक. देन ये हो गए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड, सॉन्ग्स, राइट फ्रॉम द गुड सॉन्ग्स, Bollywood songs, I will say, old Hindi songs, old Marathi song, whichever your mother tongue is there. The child should get opportunity to get explored to various type of music. First of all,
ये इंस्ट्रूमेंट जो बजा रहे हो उसको बाजू में रख दो. डोंट एट ऑल गिव हिम एनी काइंड ऑफ दैट टॉय गिटार जैसा जिसमें टैन टू आ जाता है. मतलब दैट इज़ दैट म्यूजिक इज़ ओके इफ़ इज़ प्लेइंग एंड ऑल, दैट इज़ ओके. ढोलक है, कॉन्गो है, दैट ऑल एवरीथिंग इंस्ट्रूमेंट्स यू गिव, बट नॉट दीज काइंड ऑफ टॉयज वेयर दे आर इट्स अ songs and narrations, poetries and songs they are singing, it is saying. Don't teach your children when they are 2-year-old, 3-year-old, Mary had a little lamb, Jack and Jill. No need to do that, okay? These are the ones why nursery rhymes our children get attracted. Why these kind of rhythm they get easily attracted, because it has got a very strong constant rhythm. Mary had a little lamb, little lamb, Jack and Jill went up the hill. What is that? It's a constant rhythm. ये rhythmic 5 ईयर्सचा. अरे बच्चे को 3 घंटा पहले भेजो स्कूल में. 3 घंटे का स्कूल होता है, 3-4 घंटे का. बोल दो टीचर को, मैम वो 2 घंटा ही बैठेगा, उसको मैं ज़्यादा नहीं, वो पहले 1 घंटा ही बैठेगा. उसको करो ना धीरे धीरे. टॉलरेंस, जैसे मैंने कहा, डोंट हिट हिज थ्रेशोल्ड इमीडिएटली. टॉलरेंस धीरे धीरे डेवलप करो. अरे गिव देम देयर पेस. रे पेस समझता है, उनको उनका टाइम लेने दो करने के लिए. फिर समझने लगेगा धीरे धीरे कितना फास्ट कर रहे हैं वो, उनका स्पीड बढ़ रहा है ग्रास्पिंग का. लेकिन हम पहले ही फास्ट टारगेट रखें और हम उसको बोले दौड़ बच्चा, मैंने तेरा स्पीड डिसाइड किया, आई हैव डिसाइडेड योर स्पीड, द स्पीड एट विच यू हैव टू रन, आई एम डिसाइडिंग. ही विल नॉट बी एबल टू डू. लेट हिम स्टार्ट, लेट हिम वॉक. ट्रेडमिल पे यू हैव कोई चला है ट्रेडमिल में? हाँ, जा. वेरी गुड समृद्धि, यू शुड डू दैट. सेकेंडली, ट्रेडमिल पे चलते हैं, चला है? कोई जिम विम किया है? मदर्स ने किया है कि नहीं? येस और नो? किया होगा ना कुछ लोगों ने. जिमिंग का एक्सपीरियंस होगा, ट्रेडमिल का, ट्रेडमिल पे चलने का एक्सपीरियंस होगा. व्हाट इज़ दैट ट्रेडमिल? क्या होता है उसमें? स्पीड्स रहते हैं. ओके, यू कैन डिसाइड द स्पीड. होता है अभी 10. डू व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ट्रेडमिल, कैन यू पुट 10 एंड रन डायरेक्टली? यू कैन नॉट. आवर ट्रेनर ऑल्सो टेल्स अस, हमारा ट्रेनर भी बोलता है, अरे हाँ पहले ना 3 से शुरू करो, जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, टेक अ ग्रिप. ओके, और धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाओ. दिस इज़ द वे इट हैज़ टू बी डन इन आवर चिल्ड्रन. धीरे धीरे करो यार, पेशेंटली करो. और एक चीज़ है, जज मत करो बच्चे को. डोंट जज हिम, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन जजिंग. जज करेंगे तो यू आर सैड, मेरा बच्चा कैन डू दिस, मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, मेरा बच्चा वो नहीं कर पा रहा है. यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर डिप्रेस्ड, एंड अगेन बूम, एवरीथिंग गोज डाउन. ये नहीं होना चाहिए. ओके, दैट शुड नॉट बी डन. जजमेंट ही नहीं करने का. नो एक्सपेक्टेशंस, नो जजमेंट. फाइन, जस्ट एन्जॉयमेंट विद द चाइल्ड. दैट हैज़ टू बी द इक्वेशन. ओके, आई होप वी हैव फिनिश्ड विद द सेशंस टुडे. ऑल द क्वेश्चंस sessions means okay Ma'am, one last question is there. अरे नहीं बेटा, I told you ना 3 questions to be selected. See, we have to start with the next I have to start with the next session now. Parents are waiting for me. Okay, over here in office. हाँ, चलो. So then imagine certain things. You need to imagine certain things out of which you have to implement. जो implement हो जाता है, जो कर पाते हो, उसमें खुशी करनी है. जो कर नहीं पाए उसको नेक्स्ट डे के लिए रखो ना, कि वो तभी करो. ओके, तो दिस वे यू हैव टू डू इट. ओके, हरिओम, श्री राम, अंबज्ञ, नाथ संविद, नाथ संविद, नाथ संविद.